Rajkumar Sangwan, a celebrated boxer and 1991 Asian Games champion, has documented his career and history with a lot of care. Neatly folded newspaper cutouts are full of headlines that covered his contribution to boxing, and his house is full of mementos from a glorious career. These include news reports of a boxing league he had started in 2005. पेपर सामने मेरे आया है अभी द रियल नॉकआउट जब मैं 2005 के अंदर चैलेंजर फाइट नाइट अंसल प्लाजा में जो प्रोग्राम रखा था उस बाउट का ये दृश्य है। ये हम जब नाइट में पार्टी हो रही थी, ये मेरा बेटा खड़ा है साहब, मैं हैट लगा के खड़ा हूँ। ये कोई मॉडल थी वहाँ की। और नीचे आप देख सकते हैं ये भी बॉक्सर विजेंद्र ने जब ओलंपिक मेडलिस्ट को बीट किया था उसकी फोटो है। ये हमारे चारों बॉक्सर जो उस समय पार्टिसिपेट कर रहे थे। मिस्टर चारू शर्मा आई थिंक काफ़ी लोग जानते हैं। तो ये उस समय की फ़ोटो सामने आ गई थी। तो मैं कुछ ऐसा नहीं है, इस बैग से मैं ये फ़ोटो निकाल रहा हूँ जो शायद कभी कभी स्टोर से निकाल के लाया हूँ आपके आगे, लेकिन कोई अरेंज नहीं है। ये जो मेरे सामने आ रहा है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि ये आप देख सकते हैं नो कॉन्फिडेंस लेफ्ट। ये बहुत बाद की है, मेरी पर्सनल कटिंग नहीं। ये जब मैं एकेडमी और काफ़ी ऊपर गए थे। अब 2012 में बॉक्सिंग फेडरेशन भंग हो गई तो हमने सोचा क्यों ना हम भी बॉक्सिंग के प्रेसिडेंट बने। Sangwan is among the hundreds of retired sportspersons who has dedicated his life towards the betterment of sport. But what makes him special is that he has even advocated for former Arjuna Award winners to get their due. Most sportspersons after retirement work as coaches, sport administrators, or get placed in railway and police jobs. An Olympic medal is also a ticket to politics for wrestlers and boxers in the state. While Sushil Kumar languishes in jail, his colleagues such as Bajrang Punia, Yogeshwar Dutt have entered the ring of politics in their post-retirement years. So has boxer Vijender Singh. Other popular athletes such as Geeta and Babita Fogart, Vinesh Fogart, who might not be Olympic champions, are also active politicians. But not all of them are cut out for politics. Many players just head straight to the lowest hanging permanent government job. Here is the story of three sportspersons from Haryana of various age groups and what their lives look like post retirement. As a 13-year-old, Sangwan's eyes lit up when he saw Amitabh Bachchan facilitating 1982 Asian Games champion Kaur Singh. Then, an active member of the NCC, Sangwan decided that he too wanted to stand at the world's biggest stage and pursue sports as his career. It was almost as if the universe conspired to make Sangwan's dream come true. When he joined a college at Bhiwani, he signed up to be part of its college contingent, and he was the lone applicant. Sangwan trained at Bhiwani Stadium under coach R.S. Yadav. Sangwan would go on to become a celebrated boxer, peaking at an international ranking of number 4 in international amateur boxing and won the gold at 1991 Asian Games. He opened a boxing academy at Delhi's KV Sainik Vihar. Listen to his journey. लकली मैं भिवानी में पढ़ता था तो उससे मैं जब कॉलेज में नोटिस बोर्ड पे लगा कि जो कॉलेज की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो आएँ, तो मैं डीपी सर के रूम में गया तो उन्होंने कहा कि आप पहले बॉक्सिंग सीखिए। तो भिवानी स्टेडियम में राजेंद्र सिंह यादव जी होते थे, बॉक्सिंग सिखाने वाले डिस्ट्रिक्ट कोच थे। तो वो कहा कि जब आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप सीख लें। पहले तो मेरे को बोलते आप क्रिकेटर जैसे लगते हो, तो मैंने कहा नहीं सर बॉक्सिंग सीखनी है। तो फिर हम 7-8 लड़के उस समय भिवानी में होते थे और मैंने बॉक्सिंग की वहाँ से शुरुआत की। और मेरा भाग्य अच्छा था कि 86 में जब स्पोर्ट्स हॉस्टल की स्थापना हुई भिवानी में, जो भारत सरकार ने साइड ने 4 हॉस्टल बनाए थे पूरे इंडिया में, तो एक हॉस्टल हमें भिवानी को अलॉट हुआ। और कैप्टन हवा सिंह वहाँ पे एज ए बॉक्सिंग के ट्रेनर आए हमारे, जो बहुत बड़ा नाम उस समय उनका था, उस समय आज भी है। एशियन गेम्स के 2 बार के गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो, और 66 एंड 70 के। और वो कोच हमारे आए तो मुझे उस समय उनको देख के उनकी गाइडेंस में आगे बढ़ने का मौका मिला। तो सर आपने जब बॉक्सिंग से रिटायरमेंट की उसके बाद आपने कोशिश करी कि इंडिया में भी थोड़ी प्रोफेशनल बॉक्सिंग
उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा। जी, मैं 1996 में एक प्रोफेशनल बॉक्सिंग को ज्वाइन किया मैंने, पेनेक्स प्रमोशंस करके लंदन के अंदर। बेसिकली अमेरिकन कंपनी थी, लेकिन लंदन में उन्होंने हमें ट्रेनिंग के लिए चूज़ किया, क्योंकि वहाँ इंडियन की थोड़ी सी कम्युनिटी ज़्यादा रहती थी। यूएस में उस टाइम पे थोड़ा कम रहती थी। तो वहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली, और इवन माइक टाइसन के जो ट्रेनर थे वो ट्रेनर हमारे भी थे। हम 3 साथियों ने जाके वहाँ प्रोफेशनल ज्वाइन की, और तीनों कामयाब भी रहे। और बट कुछ ऐसे सरकमस्टांसिस थे, फैमिली के थे, कि मैं वहाँ से थोड़ा सा जल्दी वापस आया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। फिर मैंने 98 में फिर मैं यूएस गया, और सारी बारीकियाँ जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग की होती हैं वो सारी सीखी। और सीख के मैंने हिंदुस्तान में थोड़ा स्ट्रगल रहा नेचुरली, उस समय इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था बॉक्सिंग। लेकिन मैं लकली 2001 में एक अपॉर्चुनिटी आई, और मैंने एकेडमी पहली इंडिया की स्थापित की। फिर आईयूएस ग्रुप से टाइम टू टाइम एक आगे बढ़ते रहे। मेरे रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए एकेडमी के। मेरे 12 से 15 बच्चे मिनिमम इंटरनेशनल लेवल पे गए। ओलंपियन भी रहे, लाइक सुमित सांगवान जो छोटा बच्चा आया था, और वो 2012 के ओलंपिक में उसने रिप्रेजेंट किया। कॉमनवेल्थ में प्रवीण कुमार, जसवीर सिंह, बलबीर सिंह, मतलब एक अच्छे नाम रहे जो इंटरनेशनल मेडल लेके आए एशिया में या कॉमनवेल्थ में। तो मैं बिल्कुल ठीक रहा। और फिर एक आईयूएस कंपनी आई, उसके साथ मिल के हमने प्रोफेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन बनाई, और चैलेंजर फाइट नाइट एक ट्रेलर हमने दिखाया कि 5 इंटरनेशनल बॉक्सर जो वर्ल्ड फेम के हैं, और 5 हमारे इंडिया के टॉप बॉक्सर। अंसल प्लाजा में हमने चैलेंजर फाइट नाइट की, जो काफ़ी अच्छी पॉपुलर हुई। एनडीटीवी प्रॉफिट चैनल ने उसको लाइव किया, और प्रणव रॉय ने नेक्स्ट वीक में रीटेलीकास्ट भी किया। तो ये हमारा प्रोफेशनल बॉक्सिंग का सफ़र यहाँ रहा। मुझे देख के या हम साथियों को देख के आज कुछ बच्चे बॉक्सिंग कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। लाइक आपने देखा विजेंदर ने भी काफ़ी 7-8 बाउटें प्रोफेशनल बॉक्सिंग की लड़ी हैं। फेस्टिवल होते थे, पूरे स्पोर्ट्समैन को इकट्ठा बिठाया जाता था, जिससे हम सारे पुराने स्पोर्ट्समैन मिलते थे। लेकिन आज तो वो परंपरा भी ख़त्म कर दी गई है। कहीं कोई पुराने स्पोर्ट्समैन को बुलाता ही नहीं। तो हमारे युवा जो खिलाड़ी हैं, जो आगे बढ़ने वाले हैं, वो उनकी गाइडेंस कहाँ से लेंगे? Sangwan says he closed down his academy due to heartbreak. He never got his due credit for recognizing and honing talent. On the other hand is Ranbir Dhaka, a wrestler whose career was cut short due to an injury. While the love for his sport kept him close to akhadas, he never got to tour with his students. सर आपका करियर इतना छोटा क्यों रहा? 6 साल छोटा चोट ने मार दिया भाई। कैसे लगी थी? चोट वहाँ जूट का मैच था, जलंधर नेशनल था। जलंधर नेशनल में पैर आ गया बीच में, और लेगामेंट फट गए। उस टाइम लेगामेंट का एक पता नहीं था हमें। हम इस पे गुड़ बांधते रहे, पत्ते बांधते रहे, देसी इलाज करते रहे। थोड़ा सा वैसे आराम हो गया, फिर लग गए, फिर लग गई। एक फिर पुन्ना लग गई थी नेशनल में। पुन्ना भी ऐसे ही बस बेमतलब ही लग गई। तो पहले इंडिया के पास ओलंपिक मैच नहीं होते थे, जूट मैच पे? हाँ, ओलंपिक मैच नहीं थे। ओलंपिक मैच सिर्फ 2 आए थे। एक एचयू था हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, और एक हनुमान के अखाड़े में था। 2 मैच ही थे इंडिया में बस। वो अपने एशियाड में आए थे, और एशियाड में इनको अलाउ कर दिए दोनों जगह। और हमारे यहाँ तो जैसे और कहीं इंडिया में मैच नहीं था। जूट के मैच पे हाँ, जूट के मैच भी नहीं थे, वो भी नेशनल में मिलते थे बस। उसके अलावा मिट्टी से नेशनल कैंप लगता था, जैसे सभी बच्चे इकट्ठे प्रैक्टिस करते। वहाँ भी पूरा मैच नहीं लगता था, ऐसा हाल था पटियाला के अंदर। एक पट्टी रहती और पूरी टीम कैसे जोर करती होगी, अब देख लो। पूरा मैच भी एक पूरा नहीं। तो आप बताइए, आपने अपने करियर में एक आध अच्छे पहलवान जिनको ट्रेनिंग दी हो? पहलवान तो बहुत हुए बेटा। जैसे परमजीत था एक लड़का, एशिया में मेडल आया। सतीश था, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल आया।
सतेंद्र था, भारत केसरी बना कई बार। और वो था मनजीत, ढोलू बोलते थे, वो भारत केसरी बना, कई मेडल आए उसके। और अनूप था, ये बड़े पहलवान जो दंगलों में होते। और मैट पे तो ये बता दूं मैं, सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस हमारे ओलंपिक में गया था संदीप तोमर। और अभी एशियाड में एक हमारा लड़का थर्ड आया है, उसको अर्जुन अवार्ड भी मिला है। एक मनोज था लड़का, कॉमनवेल्थ में उसकी पोजीशन थी, सेकंड था वो कॉमनवेल्थ गेम जो अपना 2010 में हुए थे। Even though he didn't get a Dronacharya award, Dhaka students gave him Dakshina when he retired. Dhaka also started at the Meher Singh Akhada when it had just 7 students. Currently, it has 1500. मैं जिस दिन यहाँ आया ना शुरू वाले दिन 7 बच्चे थे, ऐसे ही पहलवान भी नहीं थे। और अब भगवान की दया से 15 तो प्रांतों के बच्चे हैं, 250 बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। और हर तरह के बच्चे हैं बेटा, बहुत तगड़े हैं। और परमात्मा की आज बड़ी मेहर है, इतने बच्चों को यहाँ रोजगार मिल रहा है। A career in sport is made sustainable with the help of stable government jobs offered to people. Success in sport is low. For those from humble backgrounds, these jobs make a significant difference. The print met Olympic player and current ACP of Jhajjar, Akhil Mishra, who is now settling into his job as a policeman. He also runs his own academy in Hisar along with his wife and monitors it remotely. He couldn't give an interview on camera. We also met Pinky Malik in Rohtak, who now works as a ticket checker like thousands of other sports persons. Pinky is a 2016 Commonwealth champion in freestyle wrestling. She highlights the importance of government jobs. मैम नौकरी के बगैर तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंजरी हमें इतनी होती है, हम अपना ख्याल तो कहाँ, आजकल तो अगर कहीं जाना भी पड़ जाए तो उसके लिए भी पैसा ही चाहिए। तो एक नॉर्मल अगर स्पोर्ट्स कर रहा है बच्चा तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जिसके घर में करोड़ों रखे हैं और वो गेम कर रहा है। सब लोग कैटेगरी से उठ के ही स्पोर्ट्स करते हैं। तो सब के लिए सब सोचते हैं कि माँ बाप ने इतना किया है तो हम भी और अच्छा करें। तो रेलवे में आपको आपकी जॉब कैसी है, आपका दिन कैसा चलता है? मेरी जॉब अच्छी है, मेरी 8 घंटे की ड्यूटी होती है, मैं चेकिंग स्टाफ में हूँ। अभी मैं डिप्टी CTI के पद पे हूँ और एक प्रमोशन के बाद मैं CTI हो जाऊँगी। तो फिर आपको कोच बनने का मन नहीं करता? नहीं, वो हम अपने कोच का स्ट्रगल देखते ना तो उसके बाद मन नहीं करता, क्योंकि जितना हमारे कोच साहब ने, मनदीप सर ने स्ट्रगल किया है मेरे हिसाब से 2013 से मैं देख रही हूँ, उनको उतना मिला नहीं है। कहीं बच्चों की कमी है, कहीं पेरेंट्स की कमी है, तो चलता है कि ट्रेनिंग कोच करवा रहे हैं, नाम किसी और का आ रहा है। तो इस वजह से मेरा मन नहीं करता कि मैं कोचिंग दूँ किसी को। आप अपनी सरकारी नौकरी जी, मैं चाहती हूँ कि मेरी तरफ से मैं अच्छा करूँ, मैं गेम वाले बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती करवा सकूँ, ऊंचे लेवल पे जाके अच्छी पोस्ट पे बैठ के। गेम तो सभी करवा रहे हैं, लेकिन उनको नौकरी दिलाना सबसे बड़ा काम है आज बीजेपी की सरकार में। तो For the print, this is Shubhangi Mishra reporting from Haryana.